Welcome students. So here let's start the part 2 of our first chapter, living world and classification of microbes. So before that we will have a small review of your previous lecture, that is the part 1, classification of living world. Okay, so just we'll have a small review. Here you can see in this picture there are some living organisms. Many type of living organisms you can see in this picture, right? There are some aquatic, some birds are flying in the sky, some are on the green trees or green plant, and some are in the water. So these are all, and many organisms are in the water. So we'll see how the classification has been done. Living organism is, this classification of living organism is given by the well known ecologist Robert Harding Whittaker in 1969. रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर जो एक बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हमारे सामने लाया हुआ है. नाउ वी विल सी this living organism is divided into two main groups, that is the prokaryotic and eukaryotic. प्रोकैरियोटिक यानी क्या, जो हमको सबको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सेल से बना है. तो प्रोकैरियोटिक इसमें जो सेल होता है उसमें का जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड और दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड. वो वेल डेवलप नहीं होता है. पर यूकैरियोटिक में का जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियरली सीन, इट इज वेरी वेल डिफाइंड एंड वेरी वेल डेवलप्ड. नाउ प्रोकैरियोट इंक्लूड्स किंगडम मोनेरा, whereas eukaryotic is again divided into two main groups, that is the unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर हमने देखा था, यूनि मीन्स सिंगल या यूनि मीन्स वन और मल्टी मीन्स मैनी, सेल्युलर मीन्स सेल. So multicellular and unicellular. So eukaryotic is mainly divided into two groups, that is unicellular and multicellular. Now this unicellular has again kingdom protista. Okay, kingdom protista comes under unicellular, means protista ये कैसा होगा, unicellular means single cell, whereas multicellular has again two groups, that is with cell wall and without cell wall. जो यूकैरियोटिक में के मल्टीसेल्युलर है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट होता है. तो जिसमें सेल वॉल होता है वो कौन कौन है, दैट वी विल सी. सेल वॉल वाले जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड किंगडम प्लांटे. ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स कम अंडर द किंगडम प्लांटे एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से वो अपना खाना खुद बनाता है और उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, photosynthesis. And all those who perform the process of photosynthesis they come under autotrophic. Okay, and the another organism with the cell wall is the kingdom fungi, जो कि heterotrophic होता है. hetero means others, auto means self. तो heterotrophic ये सारे इसमें kingdom fungi आता है, all type of fungus. Okay, then without cell wall वाला जो किंगडम है दैट इज एनिमलिया. जो भी एनिमल्स है या ह्यूमन ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनिमलिया, ये इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है. होप यू हैव अंडरस्टूड. सो हियर नाउ रॉबर्ट विटाकर he divided organism into 5 kingdom. The first one is the Monera, second one kingdom Protista, third kingdom Fungi, fourth kingdom Plantae, fifth kingdom Animalia. So we will see we are going to learn here 3 kingdom, that is kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. Very simplest living things
belong to the kingdom Monera. Many Monerans are of microscopic size. There are about 3,000 different types or species of Monerans. About half the species of Monerans are bacteria, while the other half are primitive plant-like organisms, like these, known as blue-green algae. All Monerans are unicellular, meaning they possess just one cell. Moneran cells are unique because they lack a nucleus. The nucleus is typically a rounded structure found only in cells of non-Moneran organisms. In animals, plants, fungi, and protists, the nucleus is where most of the information-storing DNA is located. But because Monerans lack a nucleus, their DNA is spread around inside their cells. The other characteristic of Monerans is that their cells are surrounded by a thick outer cell wall. Cell walls are found only in Monerans, fungi, and plants. Some Monerans, in particular the blue-green algae, can manufacture food using the sun's energy. Such organisms are called autotrophs. Other Monerans, including most bacteria, cannot make their own food. These organisms are called heterotrophs. To review, the characteristics of Monerans are: they are unicellular, lack a nucleus, have cell walls, and can be either autotrophic or... So let's begin. Kingdom Monera. So this kingdom Monera has all type of bacteria and blue-green algae are included in kingdom Monera. जितने बैक्टीरियाज है, सारे प्रकार के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सारे कहाँ पे आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं. ओके, देन वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या? जो उसकी स्पेशलिटी होती है. हर ऑर्गेनिज्म, हर इंडिविजुअल का एक अपना स्पेशल कैरेक्टर होता है. तो यही कैरेक्टर्स हमको मोनेरा के भी देखना है. तो ये मोनेरा के कैरेक्टर्स क्या है? सो फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर. मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर, मीन्स दे आर सिंगल सेल. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. अगर आप ये लेफ्ट साइड के पिक्चर में अगर देखो तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं और कुछ कलरलेस दिख रहे हैं. सो जो ग्रीन कलर के हैं मीन्स वो ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस दे आर इन ऑटोट्रॉफिक मोड. बट कुछ है जो कि हेटेरोट्रॉफिक है, मीन्स द क्लोरोफिल पिगमेंट इज एब्सेंट एंड दे नीड टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर होते हैं और इसीलिए उसको हेटेरोट्रॉफिक बोला जाता है. और ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना स्वयं खुद बनाता है. ओके, देन वी विल सी द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. These are the prokaryotic cell without distinct nucleus or cell. So ये जो third characteristic है, these are prokaryotic cells without distinct nucleus or cell. So हमने prokaryotic और eukaryotic पढ़ा है. तो prokaryotic में जिसमें न्यूक्लियस क्लियरली सीन नहीं है, क्लियरली वेल डेवलप्ड नहीं है या वेल डिफाइंड नहीं है, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट. So kingdom Monera या bacterias क्या है? They come under the prokaryotic. They are the prokaryotic, means they don't have clearly well defined nucleus. Hope you have understood. Then they are moving small rod like microbes are lactobacilli bacteria. अभी ये क्या है कि ये मूव करते हैं. और दूसरी चीज है कि दे आर स्मॉल रॉड लाइक. आपने छोटे छोटे रॉड्स जो देख रहे हैं ये इस पिक्चर में अगर आपको दिख रहा है, सो दे आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वेरी minute and very very small microorganisms are there.
and which we need to see them in the under the microscope. So हमको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. तो ये स्पेशली उसके जो एग्जाम्पल्स है, द एग्जाम्पल्स आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. इसके एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. जो हम कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं या बटर मिल्क है, छाछ होता है, इसमें ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमको देखने मिलता है. अब ये आप बोलोगे कि हम बैक्टीरिया को खाते हैं क्या? तो हाँ, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया. तो ये जो कर्ड में होने वाले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. दे आर वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. सो that bacteria are good bacteria and they are useful for our health. Okay, so this was the kingdom Monera. So all type of bacteria and blue green algae are included in kingdom Monera. जितने बैक्टीरिया है, जितने टाइप के बैक्टीरिया हो गए इस environment में या nature में या on this planet, they are all included in the kingdom Monera. So bacteria and all blue green algae. So here is an activity which you can do or we will do in the school when the school will reopen. तो इसमें क्या करना है? Take a small drop of curd or buttermilk on a clean glass slide. जो glass slide होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये glass slide है और इसमें ये जो कर्ड है, ये कर्ड में से एक ड्रॉप आपको ये ग्लास स्लाइड पे डालना है. ओके, देन केयरफुली कीप अ कवर स्लिप. छोटी सी कांच की कवर स्लिप होती है, वो आपको उस स्लाइड पे, उस ड्रॉप पे हल्के से डालना है जिसमें बबल नहीं आना चाहिए. एंड देन यू कैन फाइंड moving small rod like microbes and they are the lactobacilli bacteria. अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको मूविंग ऐसे हिलते हुए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे एंड दोज आर नथिंग बट द लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया. ओके, तो ये मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स विच आर लैक्टोबैसिलस बैसिली बैक्टीरिया and they are very good for our health. The next kingdom of living things, the kingdom Protista, consists of microscopic plant-like and animal-like creatures that are often referred to as protozoa. The kingdom Protista has about 30,000 species. All protists are unicellular. They have a nucleus but lack cell walls. Like the Monerans, some can make their own food and are autotrophic, while others are heterotrophic and cannot make food. So here we will have kingdom Protista. So let's see what are the characteristics. Kingdom Protista. You will find some motile microbes with irregular shape. These are amoeba. So आपने अमीबा देखा होगा, कभी आपने पिक्चर में देखा होगा या स्लाइड्स में देखा होगा, लैब में देखा होगा. सो अमीबा डजंट हैव एनी परफेक्ट शेप. जो अमीबा होते हैं उसको कोई भी परफेक्ट शेप नहीं होता है. दे आर इरेग्युलर, कैसे भी आड़े तिरछे कैसे भी शेप के होते हैं. ओके, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. Protista are single-celled organism with well-defined nucleus and enclosed in a nuclear membrane. अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रोटिस्टा ये सिंगल सेल है ऑर्गेनिज्म एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. ओके, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत क्लियरली दिखती है और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत क्लियर रहती है और तो उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, वेल डेवलप्ड है. एंड इसी का अर्थ क्या है कि दे बिलोंग टू यूकैरियोट, राइट. नेक्स्ट, दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन. अगर ये पिक्चर में आप देखते हो
तो ये जो अमीबा है, ये जो स्लाइट वाइट कलर का जो दिख रहा है, ये इरेगुलर शेप वाला अमीबा है। तो ये अमीबा सूडोपोडिया, दे हैव सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स। जैसे हम लोग चलते हैं, हमारे पैर से चलते हैं, तो वैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चलते हैं। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमीबा में कैसा है? सूडोपोडिया। उसी से वो मूव करता है, उसी से वो खाना भी लेता है, और वो उसी से वो इधर उधर मूव भी करता है। इन अनदर यूग्लिना में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको बोलते हैं सिलिया बोलते हैं। अगर इसमें हम देखते हैं, ये पैरामेशियम है, पैरामेशियम में अगर इसके बाउंड्री पे हम देखते हैं तो वेरी फाइन थिन लाइक स्ट्रक्चर आर देयर, सो दैट इज द अगेन सिलिया। सो इस के हेल्प से ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स वो उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और उस वजह से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एंड दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल, यूग्लिना वॉलवॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अभी यहाँ पे जो हम पिक्चर देख रहे हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट है, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो गया? वो ग्रीन कलर के है, एंड दे परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड वेर एज अमीबा और पैरामेशियम, दे डोंट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें एब्सेंट होता है, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होने की वजह से वो हेटेरोट्रॉफ कैटेगरी। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। पॉन्ड से आपको थोड़ा सा पानी लेके आना है और स्लाइड पे एक ड्रॉप आपको डालना है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अभी जहाँ पे गंदा पानी होता है, पॉन्ड में पानी जमा होता है, वहाँ पे सारी गंदगी रहती है, तो उसमें क्या होगा? उसमें कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट होगा? दैट यू हैव टू थिंक एंड you need to write. Okay, then let's see. Characteristic of Protista. Protista are single-celled organism with well-defined nucleus enclosed in a nuclear membrane. अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक अमीबा का पिक्चर दिख रहा है, राइट? और ये सूडोपोडिया है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इसको सूडोपोडिया बोला जाता है, और ये न्यूक्लियस है। ओके, ये जो है ये न्यूक्लियस है बीच में सेंटर में, और उसकी जो आउटर लेयर दिख रही है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे वेल डिफाइंड है, वेल डेवलप्ड है, और उस वजह से उसकी जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कौन से कैटेगरी में आ गया है? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक। यहाँ पे देखो कि ये फर्स्ट पिक्चर में आपको अमीबा दिख रहा है, उसके जो बाहर की जो ये दिख रहा है लेयर दिख रही है, दैट इज द सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स। तो वो अपना लोकोमोशन यानी अपना एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए वो सूडोपोडिया का यूज करता है। सेकेंड पिक्चर में ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे अगर ऊपर में देखते हैं बहुत माइन्यूट छोटे छोटे बिल्कुल दुबले पतले यहाँ पे बाल समान हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड सिलिया। So these organism volvox they use cilia as their legs. उसका legs के रूप में वो move करने के लिए उसको use करता है। If you come in this third organism that is Euglena, तो ये Euglena को ये whip like, ये क्या है? एक thread like उसका structure दिख रहा है, और ये structure क्या करता है? उसको locomotion means to move from one place to another place, उसके लिए उसको help करता है। देन दे आर ऑटोट्रॉफ। अगर आप वॉलवॉक्स और यूग्लिना को यहाँ पे देखते हैं, सो दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, इसीलिए तो वो ग्रीन दिख रहे हैं, राइट? और ग्रीन होने की वजह से दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड दैट्स व्हाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफिक। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं यूग्लिना एंड वॉलवॉक्स, तो ये दोनों भी हमको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं,
and though they have green color means they contain chloroplast और chlorophyll pigment, और उनमें chlorophyll pigment या chloroplast होने की वजह से they can perform the process of photosynthesis, और जब वो photosynthesis करते हैं means they come under the category of autotroph. ऑटोट्रॉफ मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है. ओके, देन अमीबा एंड पैरामीशियम दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. अमीबा कैसा है एंड पैरामीशियम कैसा है? दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स दोज द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर द फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. ओके, The mushrooms, molds, and yeasts are also multicellular organisms. However, unlike plants, fungi are heterotrophs and cannot make their own food. Fungi cells have cell walls and almost always have more than one nucleus. There are about 100,000 species of fungi. take a moist piece of bread or bhakri and keep it in a container with lid for 2 to 3 days. आपको क्या करना है? एक छोटा सा ब्रेड या भाकरी या चपाती का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है एंड यू नीड टू कीप इट इन अ कंटेनर विथ लीड फॉर 2 to 3 days. या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक आधे बॉक्स में रख सकते हैं या एक आधी जो कैरी बैग होती है छोटी सी प्लास्टिक की, उसमें जो ट्रांसपेरेंट होती है उसमें आपको उस भाकरी को या ब्रेड को या चपाती को आपको उसमें डाल के रख देना है. और उसको अगर आप बॉक्स में डालते हैं तो बॉक्स को बंद कर देना है ढक्कन लगा के, या आप पॉलीथीन बैग में डालते हो तो उसको थ्रेड से टाइट पैक करना है जहाँ कि उसमें हवा ना जाए. एंड आफ्टर दैट, after 2-3 days, if you observe, you will find a small उसमें आपको ऐसे कॉटन टाइप सरफेस दिखेगा. उसका कॉटन जो रहता है ना, कपास समान, आपको उसमें एक लेयर दिखेगी and that layer is nothing but the fungus. Okay, so that we are going to learn another kingdom. That kingdom is kingdom fungi. So उसके characteristic क्या है? These are non-green eukaryotic heterotrophic organism. ये नॉन ग्रीन है. यहाँ पे आपको मशरूम्स दिख रहे हैं विच आर नॉन ग्रीन कलर. देन यहाँ पे आपको यूकैरियोटिक रेड कलर का मशरूम दिख रहा है. यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं. तो ये जो नॉन ग्रीन है, तो ये कैसे हो गए नॉन ग्रीन है, यानी इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा क्या? नहीं. देन ये मशरूम आपको कैसे कलर का दिख रहा है? ये अगेन इट इज रेड कलर. यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है? नहीं, इट इज अगेन व्हाइट कलर. सो दे आर नॉन ग्रीन मीन्स द क्लोरोफिल पिगमेंट इज एब्सेंट. यूकैरियोट मीन्स उनका सेल वेल डिफाइंड है, एंड हेटेरोट्रॉफ मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ characteristic of fungi, again the second point. Most of them are saprotrophs. They feed upon decaying organic matter. आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि saprotrophs यानी क्या, saprophytic या saprotrophs यानी क्या. सो ये जो फंजाई रहते हैं ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जीते हैं. जो मरी हुई या सड़ी हुई जो चीजें रहती है उसमें जनरली ये ग्रो होते हैं. और जो कोई मरा हुआ या सड़ा हुआ जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें के पूरे न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करता है और उसी के ऊपर वो निर्भर होता है अपने फूड के लिए. ओके, लाइक लेदर की बैग्स है, शूज होते हैं, या लकड़ी का टुकड़ा होता है, या ऐसे डेड एनिमल्स है, तो वहां पे मोस्टली हमको ये सैप्रोट्रॉप्स हमको देखने मिलते हैं. ओके, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन. तो अगर ये इस पिक्चर में अगर आप देखते हैं तो ये छोटे छोटे ये जो गोल दिख रहे हैं दे आर द स्पोर्स ऑफ फंगस या फंजाई. और इसकी जो सेल वॉल है ये सेल वॉल टफ होती है. ओके, लिटिल बिट टफ, दैट इज नॉट दैट मच easy to break, and it is made up of chitin. ये शुगर की लेयर बनी रहती है और उसको क्या बोला जाता है? चिटिन बोला जाता है, which is made up of sugar, complex sugar से. Then
The fourth characteristic of fungi is some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. So some fungi are thread-like and many nuclei are present. तो ये आपको यहाँ पे thread-like दिख रहा है और ये जो बीच बीच में ये दिख रहा है ये न्यूक्लियस है. अगर एक रहा तो उसको न्यूक्लियस बोला जाता है और बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई बोला जाता है. ओके, तो ये अगर ये क्लियरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो ये अगेन कौन से ग्रुप में आएंगे, either the eukaryotic or prokaryotic, you need to think. Okay, then next बेकर्स ईस्ट, जैसे पाव है, बन है, ब्रेड है, तो उसमें बेस यूज्ड. ओके, और उस वजह से क्या होता है कि उसमें पफीनेस या उसमें जो स्पॉन्जीनेस जो दिखता है या हम फील करते हैं उसका टेक्सचर, दैट इज ड्यू टू द बेकर्स ईस्ट. फिर हम देखते हैं पेनिसिलियम. तो पेनिसिलियम इट इज एन एंटीबायोटिक. ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है. एंटीबायोटिक यानी क्या, जहाँ पे कुछ हमको फंगल इन्फेक्शन होता है, बुरशी बोला जाता है. अगर वो बुरशी हमारे बॉडी को कहीं लग जाती है, सो दैट मेक्स द इन्फेक्शन, दैट क्रिएट्स द इन्फेक्शन, एंड वो इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको डॉक्टर क्या करते हैं, पेनिसिलियम करके ऐसे ये देते हैं, मेडिसिन देते हैं. और ये पेनिसिलियम ये फंगस से ही बना हुआ है. और ये फंगस, ये इसका जो क्या बोलते हैं उसको, जिन्होंने डिस्कवरी किया है या इसको जिन्होंने रिसर्च किया है इस पे, दैट वाज द साइंटिस्ट कॉल्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियन यानी जो फंगस है उस पर स्टडी किया, एंड थ्रू दैट फंगस ही हैज इन्वेंटेड द मेडिसिन पेनिसिलियम. और ये पेनिसिलियम क्या करता है, इट डिस्ट्रॉयज द फंगल इन्फेक्शन. देन मशरूम. तो मशरूम जो होते हैं, मशरूम भी दो प्रकार के होते हैं. सम मशरूम्स आर रेड एंड सम मशरूम्स आर वाइट कलर. सो जो रेड कलर के मशरूम होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते, क्योंकि उसमें है ना बहुत टॉक्सिक रहता है, दैट इज डेडली पॉइजनस, दैट इज नॉट गुड. वो मोस्टली जहाँ पे डैम प्लेसेस होती है या मॉइस्ट जगह रहती है, जहाँ पे पानी टपकते रहता है या धूप अच्छे से नहीं आएगी, वहाँ पे ये जनरली ग्रो होते हैं. गंदी जगह पे ये ग्रो होते हैं. तो आपको जंगल में इधर उधर झाड़ों में वगैरह आपको देखने मिलेगा. इवन कहीं कहीं जो स्टेम्स होते हैं उसमें भी हमको ये देखने मिलता है. सो मशरूम, व्हाइट मशरूम इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ, वेयर एज द रेड मशरूम इज नॉट गुड फॉर अवर बॉडी. ओके, देन Baker's yeast aspergillus fungus on corn, Penicillium